Hello students, this is Ipshita Gangopadhyay, teacher from Trinity International School. Students, in our previous video, we have started learning the chapter number 4, that is multiplication. In this chapter, we have already discussed about the definition of multiplication. Then we have also learned about the different terms, that is multiplicand, multiplier, product. Then we have also revised the tables from 2 to 10, isn't it? Then we have also learned how to construct the multiplication tables, and for constructing the multiplication tables you have to use different ways. So there were 4 ways to construct the multiplication tables. One was by repeated addition, second was by skip counting method, thirdly was your grid pattern method, and lastly was by adding the numbers from 1 to 10. So by using these 4 different ways, you can easily construct the multiplication tables. And moreover, as you know that you also have to by heart the tables from 1 to 10. So today we will start to learn the method to multiply the numbers. So we have already done up to our exercise 4.3, and now we will learn how to multiply 2-digit number by a 1-digit number without carry over. So let us learn how to multiply the digits, and after learning how to multiply the 2-digit number by 1-digit number without carryover, we will move to exercise 4.4. So let us start to learn how we can multiply the 2-digit number with 1-digit number. Now you can see that multiplication can be done by horizontal method and vertical method. So when you are multiplying a 2-digit number with 1-digit number and the multiplication is without carryover, that time you can use horizontal method and your vertical method. Okay, so any one method you can use and you can multiply the numbers. Okay, so let us first learn how you can go for horizontal method. आपको horizontal method से कैसे multiply करना है वो हम सीखेंगे. ठीक है, तो horizontal method means क्या होता है? Sleeping line. Horizontal is your sleeping line or sleeping way. Okay, so let us write the numbers in sleeping way. So I have taken an example. मैंने एक example ले लिया है. Multiply 43 by 2. So let us write it in sleeping way. तो देखिए मैंने ऐसे करके लिख लिया है sleeping way में, क्योंकि हम horizontal method use कर रहे हैं. ठीक है, now you can see that यहाँ पे 2 डिजिट है, टेंस और वंस, और यहाँ सिर्फ एक ही डिजिट है. सो इट इज योर वंस प्लेस. नाउ व्हाट यू शुड डू इज यू हैव टू मल्टीप्लाई. तो यहाँ पर आप टेंस और वंस को प्लेस को लिख लीजिए. अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम ये जो 2 है, अब देख पा रहे हैं यहाँ पे एक सिंगल डिजिट है और यहाँ पे है 2 डिजिट नंबर. ठीक है, तो ये 1 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है. तो मैं क्या कर रही हूँ अभी देखिए, तो यहाँ पर जो आपके वंस प्लेस में जो नंबर है उसको सबसे पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ. तो यहाँ पर क्या है वंस के प्लेस में नंबर? नंबर इज 3. सो यू नो द टेबल ऑफ 3. सो 3
3 multiplied by 2 is how much? 6. So just write under your ones place 6. Okay. Now after this, what you should do is you have to multiply the next digit that is under the tens place. अब देखिए हमने ये 3 और 2 को तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो वंस के प्लेस में मल्टीप्लाई किया था, इसीलिए हमारे पास क्या आ गया? 6, वो भी वंस के प्लेस में। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर? अब देखिए यहाँ पे जो टेंस के प्लेस में 4 है, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का टेबल आपको जरूर आता है, तो आप कर सकते हैं 4 2 जार कितना होता है? 4 2 जार 8। सो लेट अस राइट हियर 8। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये टेंस के प्लेस में हमने ये 2 को मल्टीप्लाई किया है टेंस के प्लेस के साथ, इसीलिए 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? 8। इसीलिए हमने इसको 8 को 10 के प्लेस में लिख लिया है। सो इसी तरह से हम हॉरिजॉन्टल वे में 2 डिजिट नंबर और 1 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? हमें ये दोनों नंबर को स्लीपिंग ऑर्डर में लिखना है। फिर क्या करेंगे? हम वंस के प्लेस में जो भी डिजिट है उसको हम जो 1 डिजिट नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हमने किया सबसे पहले, तो यहाँ पर क्या आ जाता है आपका? 6। तो 6 किसके कौन से प्लेस के अंडर में लिखेंगे? वंस के प्लेस के अंडर में। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? हम ये टेंस के अंडर में जो डिजिट है दैट इज 4 को हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें मिलता है 8। तो 8 को हम क्या करेंगे? टेंस के प्लेस में हम लिख देंगे। तो हमारा जो प्रोडक्ट आया है दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। ओके, सो ये जो प्रोडक्ट आया है आपके पास, ये प्रोडक्ट इज 86। ओके, सो 86 इज योर प्रोडक्ट। अब देखिए हम दूसरा वाला मेथड का यूज करेंगे, वो है वर्टिकल मेथड। तो हम ये सेम जो नंबर्स है वो हम लिख लेंगे। तो अब देखिए हम कैसे लिखते हैं इन दोनों नंबर्स को। सो देखिए हमने 43 ऐसे लिख लिया है और 2 को हमने इसके नीचे लिख दिया है। तो एज पर योर नॉलेज आपको जैसे बताया गया था मैंने उसी तरह से लिखा है। देखिए ये 3 वंस के प्लेस में था और 2 भी वंस के प्लेस में है। वैसा ही हमने वर्टिकल जब मेथड यूज कर रहे हैं तो हमने उसी तरह से हर एक डिजिट को प्लेस किया है। तो आप देख सकते हो भी वर्टिकल का मतलब है स्टैंडिंग, तो हमने स्टैंडिंग वे में इसे लिख लिया है। ठीक है, तो सेम जिस तरह से हमने हॉरिजॉन्टल मेथड किया था उसी तरह से हम ये मेथड भी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले वंस के प्लेस में जो दोनों नंबर्स है 3 और 2 उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 and 2 gives you 6 and then go for multiplication with your tens digit, that is 4 and 2 gives you 8. ओके, सो आप देख पा रहे हो कि दोनों आंसर्स आपके जो प्रोडक्ट है यहाँ पर भी 86 आया है, यहाँ पर भी 86 आया है, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट मेथड यू हैव यूज्ड। तो दोनों जो मेथड यूज किया है आपको आंसर सेम ही मिल रहा है, सिर्फ आपके लिखने का जो पैटर्न है वो डिफरेंट है। सो यूजुअली जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिए
कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन का कोई मेथड अप्लाई करते हैं तो अभी आप छोटे हो, इसीलिए हमेशा हम ये वर्टिकल जो है ना, ये वर्टिकल मेथड हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें हमको जो मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं उस समय हमको जो भी डिजिट्स लेना पड़ता है वो अच्छी तरह से हम बिना किसी मिस्टेक से लिख सकते हैं। और ऐसे स्लीपिंग वे में करेंगे ना तो मिस्टेक ज़्यादा हो जाता है। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, ये वर्टिकल मेथड का यूज़ ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे, जिसमें कि आपको मल्टीप्लिकेशन दिया गया है एंड you can see that usually this type of method is used, that is vertical method. Okay, so just go for exercise 4.2 and we will do the multiplication of 2-digit number and 1-digit number without carry over. यहाँ पे हमने कैरी नहीं लिया है। आपको कैरी का तो पता है ना, आपने जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था तो कैरी का तो आपको आइडिया है ऑलरेडी। सो अभी मल्टीप्लिकेशन में भी हम कैरी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज 4.4 है इसमें आपको विदाउट कैरिंग ओवर है। सबसे पहले वो वाले सम्स कर लेते हैं, बाद में हम कैरी ओवर वाले सम्स करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 4.4। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 4.4। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मल्टीप्लाई द गिवन नंबर्स। नाउ यू हैव बीन गिवन विथ 2-digit नंबर। 2-digit नंबर आपका कौन सा है, ये वाला 30, और 1-digit नंबर कौन सा है, 8। तो आप देख पा रहे हो ये कौन से पैटर्न में है, वर्टिकल वे में, स्टैंडिंग वे में आपके दोनों नंबर्स लिखे गए हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विथ द मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 10s प्लेस है और ये 1s प्लेस है। तो लेट अस गो फॉर फर्स्ट 1s प्लेस। सो 8 multiply by 0 always gives you 0। ओके, कोई भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाता है। फिर आप देखिए 8 को एक बार 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या करेंगे, फिर 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 3 ज़ा 24। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 240। ठीक है, फिर लेट अस कम हियर। यहाँ पर भी पहले क्या करोगे, नीचे का जो नंबर 2 है उसको क्या करोगे, पहले 1s के प्लेस से ही मल्टीप्लाई करोगे। 2 4 ज़ा 8। ओके, देन 2 2 ज़ा 4। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाइए, क्या करोगे, सबसे पहले 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, है ना। तो 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, जो सिंगल डिजिट नंबर है, 1-digit नंबर है, उसको सबसे पहले उसके 1s के प्लेस के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर यही नंबर को फिर 10s के प्लेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2। 4 इंटू 2 कितना होता है, 8। देन 4 इंटू 3 कितना होता है, 12। ठीक है, आंसर देखिए 128। और आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, 2 1 ज़ा 2। Then 2 multiplied by 2 is 4. Two multiplied by 4 is 8. 2 multiplied by 3 is 6. Okay, turn the page. 6 1s are 6. 6 into 3
18। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 3 1s 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, यहाँ आइए 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9। ठीक है, फिर यहाँ पर आइए 8 मल्टीप्लाई बाई 1 8, देन 8 3s are 24. Come to last question. 2 3s are 6, 2 4s are 8. ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, ये वाला नंबर को ये वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर अगेन ये वाले नंबर को ये वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए यहाँ पर लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट। नाउ ये देखिए आपके स्लीपिंग वे में लिखे हुए हैं। अभी आप क्या करोगे, आपके जो नोटबुक है, नोटबुक में आप क्या करोगे, इनको इस तरह से लिखोगे, ऐसे ऐसे वर्टिकल वे में लिखोगे और आप इसका प्रोडक्ट निकालोगे। ठीक है, तो ये जो इस तरह से क्वेश्चंस दिए हैं, तो इसे आपको अपने नोटबुक में सॉल्व करने हैं। सो लेट अस ट्राई टू राइट द नंबर्स एंड फाइंड द प्रोडक्ट। ओके, तो इसमें से मैं आपको यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सो मैं आपको कुछ सम्स दिखाऊंगी और बाकी आप एज ए होमवर्क करोगे नोटबुक में। ठीक है, सो लेट अस गो फॉर द क्वेश्चंस। Now you can see that I have written the questions. देख सकते हैं बुक में ऐसे लिखा हुआ था हॉरिजॉन्टल वे में, तो मैंने क्या किया है, मैंने देखिए इसको वर्टिकल वे में हर एक क्वेश्चन को लिख लिया है। तो मैंने 6 क्वेश्चंस लिखे हैं, तो आप देख सकते हैं मैंने उन सभी को वर्टिकल वे में लिख दिया है। अब मैं इसे सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो सबसे पहले क्या करेंगे, 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 गिव्स यू 9, देन 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 गिव्स यू 27। सो आपका प्रोडक्ट आ गया 279। कम टू दिस क्वेश्चन, 2 multiplied by 2 gives you 4, 2 multiplied by 4 gives you 8. Okay, now come to this question, 7 multiplied by 1 is 7, 7 multiplied by 2 is 14. ठीक है, और आप देख पा रहे हो मैंने सब में टेंस और वंस का प्लेस मेंशन किया है। ठीक है, सो आप यहाँ पर आ जाइए। 5 multiplied by 1 is 5. Again 5 multiplied by 1 is 5. Okay. Now here 4 multiplied by 2 is 8. 4 multiplied by 1 is 4. So आपको टेबल आना बहुत ज़रूरी है। फिर 9 multiplied by 0 is 0. 9 multiplied by 1 is 9. Okay. So like this you need to go for all the other questions. So आपको G से लेकर L तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 मोर 6 questions। मैंने यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन करके दिखाया है। आप नेक्स्ट जो 6 क्वेश्चंस है फ्रॉम G टू L आप अपनी नोटबुक में खुद करोगे। ठीक है, दैट इज योर होमवर्क और बहुत इजी है, आपको सिर्फ टेबल याद रखना है। ठीक है, तो आप टेबल याद रखोगे तो आपको ये मल्टीप्लिकेशन सम्स बिल्कुल भी इजी लगेंगे। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड with the exercise 4.4. Okay, so let us move to next topic.
Now we will learn to multiply two-digit number by one-digit number with carryover. So multiplication of a two-digit number by a one-digit number with carry over. तो यहाँ पर जो भी सम्स हमने किए थे वो विदाउट कैरी ओवर थे. अब हम नेक्स्ट मेथड सीखेंगे, उसमें क्या रहेगा आपका विथ कैरी ओवर. ठीक है. सो लेट अस लर्न विथ एन एग्जाम्पल. तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ और उससे हम सीखेंगे कि हम विथ कैरी ओवर मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं. Now see, I have taken one example, that is multiply 54 by 8. Okay, so I have already written the numbers. मैंने देखिए ये numbers को vertical way में लिख लिया है. 54 multiply by 8 और साथ में ही मैंने इनको प्लेसिंग भी लिख दिया है इनका. ठीक है. और जब भी आप ये प्लेसिंग लिखोगे ना, तो ये प्लेसिंग और ये नंबर्स के बीच में थोड़ा गैप रखिए. ठीक है. क्योंकि यहाँ पर हम लोग कैरी ओवर वाले नंबर्स लिखेंगे, इसीलिए थोड़ा सा आप जब भी नोटबुक में लिखोगे तो एक लाइन ऐसे छोड़कर फिर आप नंबर्स लिखिए, सो दैट कैरी ओवर वाला नंबर्स आपको क्लियरली विजिबल रहे. ओके. सो देखिए, अब हम इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे. तो as such we multiply it with the same method how we have multiplied previously. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो अभी क्या हो गया. देखिए, आप 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टेबल तो याद होगा. 8 4 are 32, isn't it? So 32. अब 32 जो नंबर है आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका 32. तो ये जो 2 है ये कहाँ पर है, ये आपका 2 है वंस के प्लेस में. तो आप क्या करोगे, ये जो 2 है इसको आप यहाँ लिखोगे और ये जो 3 है इसको आप क्या करोगे, इस 3 को आप कैरी ओवर लोगे. ठीक है. सो लेट अस राइट द कैरी ओवर. तो ये जो आपका 3 है इसको हम कैरी ओवर यहाँ पर ले लेंगे. देख पा रहे हैं आप, ये जो 32 आया था, 8 4 are 32. सो लेट मी राइट दिस ऑल्सो. यहाँ पर 8 4 कितना आया है आपका 32. सो 32 का 2 क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे और 3 को यहाँ पर. ठीक है. तो जैसे कि हमने ऐड और सब्ट्रैक्शन में भी देखा था, इसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे. ठीक है. तो अब 3 आ गया आपके टेंस के प्लेस में. ओके. नाउ लेट अस देन गो फॉर 8 5. सो 8 5 क्या होता है, 8 5 होता है 40. सो लेट मी राइट हियर. 8 5 क्या है आपका 40 है, लेकिन 40 के साथ आपके ऊपर भी एक 3 है. तो आप क्या करोगे, ये जो 3 है इसको भी हाफ 40 के साथ ऐड कर लोगे तो आपका टोटल क्या हो जाता है 43. तो ये 43 जो आपका आया यहाँ पर वही 43 आपको लिखना है. तो ये रहा आपका प्रोडक्ट. ठीक है. तो सबसे पहले हमने क्या किया था, 8 4 32 आया था. 32 जब आया था तो हमने क्या किया, ये 2 डबल डिजिट नंबर आ गए, 2 2 डिजिट नंबर आ गए. तो 2 डिजिट नंबर में से जो वंस के प्लेस का नंबर था उसको हमने लिख दिया नीचे, और ये जो 3 था इसे हम लेकर गए एज ए कैरी ओवर. देन व्हाट वी डिड, अगेन 8 5 किया हमने. 8 5 कितना आया 40 आया, और ये जो 3 था उसको हमने ऐड कर दिया और हमें टोटल कितने मिल गए 43. तो जो ये टोटल फाइनल आंसर जो आया है इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है. तो हमारा प्रोडक्ट आ गया है 432. सो दिस इज हाउ वी नीड टू गो फॉर आवर मल्टीप्लिकेशन. तो अभी आप देख सकते हो ये आ गया आपका 100 प्लेस में, ये टेंस और ये वंस. तो जब आप बड़े मल्टीप्लिकेशन करोगे तब हम वो भी सीख लेंगे. ठीक है.
So let us move to exercise 4.5. Now before moving to exercise 4.45 आपको थोड़े बहुत फैक्ट्स बता देते हैं, थोड़े इम्पोर्टेंट जो चीज़ हैं वो ज़रा बता देते हैं। तो उसमें कैसा है कि आपको पता है कि कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या होता है, द नंबर इटसेल्फ। लाइक आपने यदि 11 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो आपका आंसर क्या आता है, 11। ओके, और कोई भी नंबर को यदि आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या आता है, 0। सो 11 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। 1,50,565 मल्टीप्लाई बाय 0 इज ऑल्सो 0। ओके, और हमेशा ये दोनों फैक्ट आप याद रखना कि कोई भी नंबर जो कि 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर आता है, सेम नंबर। And if the number is multiplied with a 0, then the whole product comes as 0. And the last and the most important point is that कि if you have this number, okay, तो आपने क्या किया था, 8 4 जा 32 किया था। ओके, 8 4 जा 32। Now what happens is यदि आपको 8 का टेबल याद नहीं है तो आप 4 का टेबल भी अभी याद रहेगा तो भी चलेगा। तो आप क्या कर सकते हो, 4 8 जा भी आप लिख सकते हो। सो 8 4 जा 32 इज ऑलवेज इक्वल टू 4 8 जा 32। ठीक है, तो आप 8 का टेबल आपको याद नहीं है तो आपको 4 का टेबल याद होगा तो भी आप आराम से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो 8 का टेबल में क्या होता है, 8 4 जा 32। और यदि आपको 8 का टेबल याद नहीं है, 4 8 जा भी आप ऐसे उल्टे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे यदि 8 का टेबल आपको याद नहीं है कि 8 5 जा 40 होता है तो आप 5 8 जा भी कर सकते हो। तो 5 8 जा भी 40 होता है। तो आप इंटरचेंज ऑफ डिजिट करोगे और उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी सेम ही नंबर आएगा। ओके, so these 3 points you have to remember while doing the multiplication. Now let us start with exercise 4.5. So these multiplications are the carryover multiplications, so please be careful in doing this. Okay, so let us start. 4 multiplied by 0 is, कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है, 0। ठीक है, फिर 4 6 जा 24। Now come to second one. 8 3 जा 24। So 24 4 लिख दिया, 2 को क्या कर लिया, कैरी ओवर। ठीक है, 8 3 जा 24 आया था, 24 आया था, 4 को हमने क्या किया है, यहाँ पर लिख दिया है और 2 को कैरी ओवर ले लिया है। फिर देखिए 8 3 जा अगेन 24 and you have 2 as carry, so plus 2 gives you 26. So let us write 26 here. Okay, so आप फिर से एक बार देख सकते, 33 into 8, यहाँ पर क्या आ गया आपका 24। सो 2 आपने कैरी ले लिया। ठीक है, 2 कैरी ले लिया है। फिर से आपका 8 3 जा 24 होता है और ये जो 2 है इसको आपने क्या करना है, आपने इसको प्लस करना है। तो आपके पास क्या आ गया नंबर, 26। सो यू हैव 264 एज योर प्रोडक्ट। आपका नेक्स्ट नंबर क्या है, 42 मल्टीप्लाई बाय 9। ओके, सो लेट अस गो फॉर 42 मल्टीप्लाई बाय 9। क्या होता है, 9 2 जा 18 होता है। सो जो 8 है वो आप यहाँ लिखोगे और 1 को एज ए कैरी ओवर लेकर जाओगे। उसके बाद क्या करोगे, 9 4 जा कितना होता है, 9 4 जा होता है 36। और यहाँ पर जो 1 है
उसको आप ऐड करोगे तो क्या होता है आपका 37. So you can write 378. Okay. Now the next question, that is 55 multiplied by 6. So I have written it. So let us go for the multiplication. 6 5s are 30. So 0 जो है यहाँ लिखेंगे और 3 को ऊपर कैरी ओवर लिखेंगे. Then again 6 5s are 30 plus 3, that is 33. So write down 33 here. Okay. So same thing I am writing here as well. तो आप नोटबुक में जो है ऐसे लिख लीजिएगा. Now next number is 47 multiplied by 5. So 5 7 जा 35. तो 35 का 5 आपका यहाँ पर आएगा. 3 कैरी ओवर हो जाएगा. फिर 5 4 जा 20. 20 plus 3, 23. Okay. So write down 23 here. Now next is 23 multiplied by 7. So 7 3s are 21. So 1 here, 2 up. And then 7 2s are 14. 14 plus 2, that is 16. So write down here 161. Okay. And whatever from G to L ये आप खुद एज ए होमवर्क करोगे. ठीक है. दिस इज योर होमवर्क फ्रॉम G to L. आप होमवर्क करोगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा. सो प्लीज डू द होमवर्क. So let us go for the second question. Here also you can see that the numbers are written in horizontal manner. So we will convert it in vertical manner and then we will find the product. तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वे में सब लिखे हैं. तो मैं इसमें से थोड़े बहुत सम आपको बता दूंगी और आप बाकी के होमवर्क कर लीजिएगा. तो मैं यहाँ पर ये 4 क्वेश्चंस आपको सिखा रही हूँ और ये जो बाकी वाले क्वेश्चन है ये आप अपने आप इजीली कर सकते हो. सो सी आई हैव टेकन A and B. नाउ आई एम राइटिंग इट इन वर्टिकल मैनर. देख लीजिए इसी तरह से मैं लिख रही हूँ दोनों सम्स को. नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल start multiplying. So 2 4s are 8 and 2 2s are 4. Okay, here no carryover is there. यहाँ पर देखिए 3 9s are 27. 27 का 7 हमने यहाँ लिख दिया. 2 को क्या करेंगे ऊपर एज ए कैरी ओवर लेकर जाएंगे. देन 3 1s are 3 और plus 2 gives you 5. So write down here 57. Okay. Now ये फिर से मैं C और D आपको दिखा रही हूँ. तो देखिए C में 4 8s are 32, isn't it? So 2 यहाँ लिख दिया. 3 को ऊपर ले लिया. फिर क्या हो गया 4 2s are 8. So 8 and you have the carry 3. So 9 10 11. So your answer comes as 112. Then go for this sum. 5 4s are 20. So 0 यहाँ लिख दिया. 2 को ऊपर लिख दिया और फिर 5 3s are 15 and plus 2. So 15 plus 2 gives you 17. So let us write here 17. So your product comes as 170. So see how we have written.
So first what you need to do is you have to write this horizontal form into the vertical form, and then you have to multiply using your method. Okay, तो मैंने आपको 4 up to D दिखा दिया है. 4 sums I have done for you. Rest you will do as your homework. So I have given so many problems for your homework. So please do that as your homework, so that it gives you practice and you will never forget how you have done your multiplication. So आप ये जो मैंने इतने सारे होमवर्क दिए हैं, आप इसको पूरा कर लीजिए, तो आपको एकदम इजीली मल्टीप्लिकेशन मेथड करने को आ जाएगा और आपको आपका जो टेबल्स है वो भी बाय हार्ट हो जाएंगे. So we have completed up to exercise 4.5. Then we will move to the word problems. Now let us start with our word problems in the chapter multiplication. Now after solving our exercise 4.5, we will move to word problems in multiplication. Okay, so in word problems, again you have been given with the numbers according to the statements, and you need to multiply the numbers and you have to get the total product. Okay, so you have to move to exercise 4.6, where you have been given with word problems and already the statements are also given to you. So we will have to just do the multiplication procedure, and we need to put the answer according to the questions. Okay, so let us start with the first question. Solve the given Hello students, this is Ipshita Gangopadhyay, teacher from Trinity International School. Students, already we have started with our 4th chapter, that is multiplication. In this chapter, we have already seen the definition of multiplication, the terms, that is multiplicand, multiplier and product. We have also seen the tables from 1 to 10. We have seen how to construct the multiplication tables by various methods. Then we have done the multiplication of 2-digit number and 1-digit number without carryover as well as with carryover. Now today we will do our exercise where we have the word problems for multiplication. So in our previous video we have completed up to exercise 4.5. So today we will learn how we can frame the word problems and how we can do the multiplication. So let us go for our next exercise, that is the exercise 4.6, which is based on word problem. Now in word problem you have already came across the addition and subtraction of word problems. So you will be familiar that in word problems हम लोग क्या करते हैं, statements लिखते हैं, है ना. statement लिखने के बाद हम लोग वो जो भी हमको multiplication दिया गया है वो हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम जो एक्सरसाइज देख रहे हैं, एक्सरसाइज 4.6, यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है. आपको उन क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद उसमें से जो भी नंबर्स दिए गए हैं उन्हें आप मल्टीप्लाई करोगे और फिर आपका जो भी आंसर है वो आपको
मिल जाएगा. ठीक है. So let us first read the question that is given in your exercise 4.6. So let us go for the A part. Some students of a school are going for a picnic in 6 buses. There are 32 students in each bus. How many students are going for the picnic? तो एक स्कूल का पिकनिक जा रहा था और उस पिकनिक में कितने बसेस थे? 6 buses were there and in each bus हर एक बस में 32 students थे. ओके. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको निकालना है who are going for the picnic. So let us go for the multiplication where you can find that there are 32 students. मतलब एक बस में 32 students थे. तो 6 बस में कितने students होंगे? So for that we need to multiply 32 by 6. हमको मल्टीप्लिकेशन करना है 32 and 6 का. ठीक है. सो लेट अस गो फॉर द मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर. तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले वंस के प्लेस में जो 2 और 6 है इनको मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी हैव 6 2s are 12. सो दिस इज ए कैरी ओवर मल्टीप्लिकेशन. सो यहाँ 2 लिखेंगे और 1 एज ए कैरी वी विल टेक. Then let us go for 6 3s are 18 and plus 1 gives you 19. So this product gives you the students who are going for the picnic. So these number of students, that is now 192 total students were there who were going for the picnic. ठीक है. उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन देखिए. A factory makes 3 toys in 1 minute. How many toys will it make in 60 minutes? So एक फैक्ट्री में 1 मिनट में 3 टॉयज मैन्युफैक्चर करते हैं और इसीलिए हमको क्या निकालना है? 60 मिनट्स में वो कितने टॉयज मैन्युफैक्चर करेंगे. ठीक है. सो यू कैन सी दैट 1 मिनट it manufactures 3 toys. So let us multiply 60 into 3. So 60 by 3. Okay. Now 3 multiplied by 0, you know that always it is 0. Any number multiplied by 0 is 0. Now 6 3s are 18. So you have in all 180 toys that can be made in 60 minutes. ठीक है. So this way you need to just go for your multiplication and you have to find out the whatever answer you require. Okay. Next one. There are 8 mangoes in one box. If there are 41 such boxes, how many mangoes are there in all? सो आपको यहाँ पर दिया गया है कि एक बॉक्स में, एक जो हमारा बॉक्स होता है मैंगोज का, उसमें 8 मैंगोज हैं. तो एक बॉक्स में 8 मैंगोज रखे गए हैं. तो अभी आपके पास यदि 41 बॉक्सेस है तो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितने होंगे? सो 1 बॉक्स हैज 8 मैंगोज. सो 41 बॉक्स विल हैव how many mangoes? So let us go for multiplication of 41 multiplied by 8. So this will give you 8 1s are 8, 8 4s are 32. So there will be in all 328 mangoes. Okay. Now let us go for the next question. There are 44 boys and each of them has 4 balloons. How many balloons are there in all? So there are total 44 boys total हैं और एक बॉय के हाथ में कितने बलून्स हैं? 4 balloons. Okay. So एक बॉय के each boy has 4 balloons. So how many number of balloons will be in
all. So you need to again multiply. क्या करोगे? 44 को 4 से multiply करोगे तो you will get 4 4s are 16. This is again carry over multiplication. Then again 4 4s are 16 and 1 is 17. So there are around 176 balloons in all. Now let us go for the next page, that is 55 page E1. So there are 44 boxes kept on a table. If each box has 6 muffins, how many muffins are there in all? So what is given is you have 14 boxes. 14 boxes टेबल में रखे गए हैं और हर एक बॉक्स में कितने मफिन्स है? 6 मफिन्स. और मफिन्स क्या मतलब क्या होता है? मफिन्स मतलब वो जो कप केक होता है ना, आपने देखा होगा कप केक, वो उसे कहते हैं मफिन्स. ओके, सो मफिन्स इज नथिंग बट दे आर द केक्स. Okay, so let us see. In each box 6 muffins are there. मतलब एक बॉक्स में आपके कितने मफिन्स है? 6 मफिन्स है. So 14 बॉक्स में कितने होंगे? So let us go for again multiplication of 14 by 6. Okay, so you have 6 4s are 24, 6 1s are 6, 7, 8. So you have 84 muffins in all. Next question. Cost of 1 pen is rupees 8. How much will 18 pence cost? 18 pence will cost. So you have to find out the cost of 18 pence. So आपके यहाँ पर आपको एक पेन खरीदने का कितना है? एक पेन खरीदने के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 8 रुपीज. ओके, तो 18 पेन्स खरीदोगे तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? सो यू नीड टू अगेन मल्टीप्लाई 18 बाय 8. सो 18 पेन्स को 8 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नाउ यू हैव टू रिमेम्बर योर टेबल. 8 8 जा 64, 6 8 1s are 8, then plus 6. How much it is? 9, 10, 11, 12, 13, 14. So you have 144 as your answer. So 18 pence will cost rupees. यहाँ क्या लिखना है आपको? rupees 144. तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, देखिए रुपीज का साइन और 144. ठीक है, सो 18 पेन्स का कॉस्ट कितना रहेगा? 144 रुपीज. ओके, नाउ विद दिस वी कंप्लीट ऑफ विद वर्ड प्रॉब्लम्स. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लैटिस मल्टीप्लिकेशन. तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन आपको एक इजी वे में मल्टीप्लाई करने के लिए सिखाते हैं. ठीक है, तो इसमें कैसा है? इसमें आपको ब्रेक करके आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड करना पड़ेगा. सो ये एक अलग तरीके का मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर है. ठीक है, तो ये भी हम एक बार सीखेंगे. नाउ हाउ टू फॉलो द lattice multiplication method. So in this example we will see how we can proceed for this type of multiplication. So मैंने देखिए यहाँ पर लिख दिया है multiply 36 by 2. तो हम ऐसे प्रोसीजर में कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिख देते हैं ना. तो हमें ये ऐसे इस तरीके से नहीं लिखना है, हमको लैटिस वे में लिखना है. तो देखिए हम कैसे लिखते हैं. अब देखिए मैंने क्या किया है. आई हैव ड्रॉन 2 boxes. ओके, देन व्हाट आई डिड, आई हैव ड्रॉन अ डायगोनल. यहाँ पर भी एक डायगोनल बना लिया है, यहाँ पर भी एक डायगोनल बना लिया है. ठीक है, अब देखिए आपका नंबर क्या है? 36. तो आप क्या करोगे? इन दोनों बॉक्सेस
जो 2 बॉक्सेस है, एक के ऊपर आप 3 लिखोगे, एक के ऊपर आप 6 लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पर जो 2 है इसको आप क्या करोगे, इधर लिखोगे, ठीक है। सो इस तरह से आपको पहले जो पैटर्न में अरेंज करना है वो ये इस तरीके से आपको अरेंज करना पड़ेगा। नहीं तो आप क्या करते हो, अब डायरेक्ट ऐसे, या तो आप हॉरिजॉन्टल पैटर्न में अरेंज करते हो, नहीं तो आप वर्टिकल पैटर्न में अरेंज करते हो, है ना। तो पहले जो हम लोग ने एक्सरसाइज देखा था उसमें हमने इस तरह के अरेंजमेंट्स को देखा था। अब हम क्या करेंगे, अब हम लैटिस मल्टीप्लिकेशन अरेंजमेंट देखेंगे। सो लेट अस फर्स्ट डू हाउ वी कैन प्रोसीड फॉर इट। तो आप देख पा रहे हो क्या किया मैंने, 2 बॉक्सेस बना लिए हैं, डायगोनल लाइंस खींच लिए हैं, और ये जो 36 जो 2 डिजिट नंबर है इसको मैंने इस तरह से अरेंज कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टार्ट माय कैलकुलेशंस, ओके। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं देखती हूँ क्या होता है। देखिए 6 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 2 12। तो मैं क्या करूंगी, इस 12 को मैं इस तरीके से लिखूंगी, ठीक है। सो 6 2 12। सो 12 जो नंबर हम सीधे लिखते थे उसको हम इस तरह से अरेंज करके लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर फिर 3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 2 is 6. So 6 means you have to write like this. क्योंकि यहाँ पर 12 जो था आपका, 12 तो डबल डिजिट नंबर आया था, 2 डिजिट नंबर, और यहाँ पे जो 6 आया है वो सिंगल डिजिट नंबर है। इसीलिए हम ऐसे इस तरीके से 6 नहीं लिख के इस तरीके से 6 लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि 10th प्लेस और 1st प्लेस दोनों को हमको फिल करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 6 2 12 उसे इस तरह से लिख लिया है, और उसके बाद 3 2 6 हमने इस तरह से यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है ये आपको क्लियर है, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इजी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम डायगोनली जो भी नंबर्स है उसको ऐड करेंगे। तो फर्स्ट में देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये बॉक्स, तो इसके डायगोनली नंबर कुछ भी नहीं है। क्या है इसका डायगोनली नंबर, इसका डायगोनली नंबर आपका यहाँ पर 0 है। सो आप क्या लिखोगे यहाँ पर आपका नंबर आ गया 0, ठीक है। ये आ गया आपका 0, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 2 नंबर है ये देखिए एक ही डायगोनल में आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो ये जो दोनों नंबर है, क्या नंबर है यहाँ पर, 6 + 1 = 7, ठीक है। अब हम इस बॉक्स में आएंगे। इस बॉक्स में हमारा कैसे है, अब इस बॉक्स में क्या है, ओनली 2 इज देयर, ठीक है, ओनली 2 इज देयर। सो वी विल राइट हियर एज 2, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया, ये इसको आप नीचे लिख दीजिए, ये 0 का जो भी सम है वो, ठीक है। तो ये डायगोनल का सम ये आ गया, ये जो डायगोनल में दोनों नंबर्स है इसका सम ये आ गया। तो हम अलग अलग स्क्वायर में लिख लेते हैं उसको, और ये आया आपका 2। तो आप देख सकते हो अभी आपका नंबर्स क्या आ गए, ये आ गए आपके नंबर्स। सो आप इसको एक साथ लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से आपके नंबर आ गए। तो अब आप आंसर कैसे लिख सकते हो, आंसर यू कैन राइट एज, आंसर कैसे लिख सकते हो, देखिए 36 × 2, ये जो था आपका 36 × 2 = ये आंसर है आपका। तो यहाँ पर 0 जो है उसको हम ओमिट कर देंगे और सिर्फ हम क्या लिखेंगे, 72। So this way you need to go for the calculation in lattice
मल्टीप्लिकेशन। सो लैटिस मल्टीप्लिकेशन में आपको इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ऐसे इस तरह से हम बॉक्सेस ले लेंगे और फिर ये वाले फर्स्ट में हम इसका मल्टीप्लिकेशन किया हमने तो वो आ गया 12, फिर 3 इंटू 2 किया उसका आ गया आपका 6। फिर हमने क्या किया, हर एक जो ये डायगोनली बॉक्सेस है इनको हम लोग ने ले लिया, तो यहाँ पर 0 है तो इसका आंसर 0 हो गया। ये 6 + 1 है तो इसका आंसर आ गया आपका 7। यहाँ पर 2 है, ये जो 2 है ये वाला नहीं, ये 2 है, ये 2 को हमने 2 ले लिया, ठीक है। तो टोटल कितना आ गए हमारे, 0, 7, 2। सो दिस इज योर आंसर। सो दिस इज हाउ वी हैव डन आवर new method, that is lattice multiplication. Now next method of doing multiplication of a 2-digit number by a 1-digit number is by mentally if we have to, means in mind we have to do the multiplication and we can write the product. So when you are doing your multiplication mentally, that time you need to follow the methods. तो आप जब आपको मेंटली आपको सॉल्व करने के लिए बोलते हैं तो आपको 2 टाइप के मेथड दिए गए हैं, वो आपको ध्यान से देखना है। वन इज डबलिंग एंड एडिंग टू मल्टीप्लाई बाय 3 and 4 एंड देन यूजिंग एक्सपांडेड नोटेशन। सो ये दोनों जो मेथड है, ये दोनों मेथड हम सीखते हैं किस तरीके से हम ये दोनों मेथड को अप्लाई करेंगे, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। नाउ वी विल सी हाउ वी कैन मल्टीप्लाई बाय दिस मेथड, डबलिंग एंड एडिंग टू मल्टीप्लाई। ओके, तो ये यूजुअली जो डबलिंग एंड एडिंग मल्टीप्लिकेशन है, ये यूजुअली हम जब भी नंबर्स 3 और 4 यूज करते हैं, दैट टाइम वी आर गोइंग फॉर दिस टाइप ऑफ मेथड। जब भी हम 3 और 4 के टेबल में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसी समय हम ये दोनों मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज वी नीड नॉट डू दिस टाइप ऑफ मेथड, ठीक है। खाली 3 और 4 मल्टीप्लिकेशन के वक्त ही हम इन दोनों मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। सो लेट अस गो फॉर वन मल्टीप्लिकेशन। देखिए, अब मैं मल्टीप्लाई 21 by 3, okay, and let me write here खाली only by 3 and 4, okay. So this method is only applicable for the multiplication by 3 or 4. So multiply 21 by 3. तो अब मैं क्या कर रही हूँ, देखिए मैंने 3 के टेबल में 21 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो 21 है डबल कीजिए इसको, डबल 21 टू गेट। तो 21 को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बार प्लस कीजिए। सो 2 बार प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 42, ओके। तो 2 times we have added 21. Now what we need to do is we had to add 1 more 21 to it. तो अब क्या करेंगे, देखिए एक बार हमने क्या किया, ये जो 21 था, आप समझ पा रहे हैं, ये जो 21 था इसको हमने क्या किया, 2 बार ऐड कर दिया। उसके बाद फिर मैंने क्या लिखा, देखिए ऐड 1 more time 21, मतलब ये जो हमारा 42 आया है, इस 42 को लेंगे और एक और बार हम 21 से इसको ऐड करेंगे। तो हमारा आंसर कितना आ गया, देखिए 63, ठीक है, 63 आ गया। और हम यदि इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, देखिए 21 into 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर
63 आता है। तो इस तरीके से भी हमारा आंसर 63 आएगा और इस तरीके से भी हमारा आंसर 63 आएगा। सो ये जो मेथड है ये डबलिंग मेथड है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले हम इसको, ये जो मल्टीप्लिकेंड है इसको हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेंड को हम 2 बार प्लस कर रहे हैं। उसके बाद जो भी हमारा सम आ रहा है उस सम को हम लिख रहे हैं और उसके बाद फिर से हम एक और 21 से उसको ऐड कर रहे हैं। देन ओनली वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट। ओके, सो यू कैन राइट, सो 21 multiplied by 3 will give you 63. So like this you can go for the multiplication method. ठीक है, ये एक तरीके का मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया। अब और एक तरीके से देख लीजिए, ये है 18/4। ओके, सो अगेन व्हाट यू नीड टू डू, डबल द मल्टीप्लिकेंड, डबल द मल्टीप्लिकेंड। मल्टीप्लिकेंड क्या है आपका 18, डबल द मल्टीप्लिकेंड दैट इज 18। ओके, सो 18 प्लस 18 कर लीजिए, 18 plus 18 is 36. Now again what you need to do is double the sum. Double the sum. इसके पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर जो सम आया था उसको फिर से एक बार 18 से प्लस किया था, लेकिन अभी क्या बोला है, डबल द सम। मतलब ये जो सम आया है इसको आपको 2 बार लिखने हैं। तो इसको आपको 2 बार लिखने हैं, तो आपको क्या मिलता है, 72। So 18 multiplied by 4 will give you 72. ठीक है, तो जो बाई 3 से जब हम कर रहे थे उस समय क्या किया था, हमने डबलिंग किया था और एक और बार मल्टीप्लिकेंट से ऐड किया था। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बाई 4 है। 4 में क्या हो रहा है, हमको दोनों बार डबल करना पड़ रहा है। फर्स्ट टाइम तो हमने मल्टीप्लिकेट को 2 बार ले लिया था तो और उसको प्लस कर दिया, फिर हमने जो भी हमें यहाँ पर जो भी सम मिला था उस सम को हमने 2 बार लिख दिए थे, तो हमको वो जो भी प्रोडक्ट है वो मिल गया है। और आप इस तरीके से करोगे तो देखिए आपका कैरी ओवर मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 5 6 7, 72. So answer is same, the product is same. Okay, so this is one more method what you can use. And the next method also is using expanded notation, where again if you can take the 2 numbers, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मल्टीप्लिकेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं 47 मल्टीप्लाइड बाई 8। अभी हम क्या करेंगे, ये जो 47 है इसका हम एक्सपैंडेड फॉर्म वी हैव टू फाइंड आउट। तो एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ 47, एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ 47 इज 40 प्लस 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये जो 40 है और ये जो 7 है इन दोनों को 8 से सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो मल्टीप्लाई 40 and 7 by 8. Okay, so let us go for 40 into 8 is equal to 4 8 ja 32, तो 320, and then again 7 into 8, so 7 8 ja 56। अब देख पा रहे हो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये जो मल्टीप्लिकेंट था इसको मैंने एक्सपैंडेड फॉर्म कर लिया है। उसके बाद आप देख पा रहे हो इन दोनों नंबर्स को मैंने ले लिए हैं और सेपरेटली 8 से मैंने इनको मल्टीप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, देखिए, ऐड द प्रोडक्ट्स। क्या कर रही हूँ, देखिए, ये जो हमारे पास 2 प्रोडक्ट मिले हैं इन दोनों को हमें ऐड करना है। सो ऐड द प्रोडक्ट्स, दैट इज 320 प्लस 56।
ठीक है, 320 प्लस 56। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, यहाँ पर 6, ये 7 और ये 3। ओके, सो योर अल्टीमेट 47 into 8 प्रोडक्ट इज 376। सो आप देख पा रहे हो इस तरीके से भी हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकता है। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेंट को एक्सपैंडेड फॉर्म में ब्रेकआउट कर लिया है, उसके बाद ईच नंबर्स को हमने मल्टीप्लायर से मल्टीप्लिकेशन कर लिया है, बाद में हमने क्या है, ऐड द प्रोडक्ट्स कर लिया है। सो दिस इज समथिंग long method. Then also sometimes this type of methods are used, that is why I have shown you this method. Okay, now the last method what you need to see is about the estimated products. Now estimated products, आपको तो estimated word पहले से ही पता था, तो let us go for estimating, that is the round up value. So you know what is the round up value of 47. So round up value of 47 is round off value of 47. So 47 is how much? It is 50, isn't it? 50. Round up value is 50. So what we will do? We will multiply, now multiply 50 into ये जो 2 है इससे, ठीक है। So this makes your multiplication easy, that is mentally you can multiply. So 5 2s is how much? 5 2s is 10. So let us go for multiplication. So you know 2 0s are 0 and 5 2s are 10. So it becomes your 100। ये आपका आंसर आ गया एस्टिमेटेड वैल्यू। और आपका एक्चुअल क्या होगा? एक्चुअल मतलब ये जो नंबर है, ये नंबर का भी आप यदि मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 2 7 14, 1 कैरी 94 आपका वैल्यू आता है, ठीक है। सो 94 इज क्लोजर, 100 इज क्लोजर टू 94। So you can see that this estimating product, that is 47 multiplied by 2, can be done by rounding off your value to 50 and then multiply this. Okay, so this is your estimated product and this is your actual value. So let us write here that this is an estimated value and this is actual value. So 100 is closer by to 94. So we can easily go for this type of method. तो हम ये तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या